اگر ہم تلوار سے جیتتے تو محبت ہار جاتی، ہم نے محبت سے فتح حاصل کی ہے۔ کیا آپ کو اپنی ماں کی وہ گود یاد ہے جہاں سکون تھا، امن تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے دنیا کی ہر مشکل اس آنچل سے ٹکرا کے لوٹ جاتی ہے؟ کیا یاد ہے وہ وقت جب چوٹ لگتی تھی تو ماں کے ہاتھ کا سہارا ہی سب سے بڑا مرہم بن جاتا تھا؟ اب سوچئے، اگر روح کو بھی کبھی ایسی ہی کوئی ماں جیسی پناہ چاہیے ہو تو وہ کون دے گا؟ جب دنیا دھوکہ دے دے، جب لوگ چھوڑ جائیں، جب سینہ بوجھ سے دب جائے، تو کون ہوگا جو ماں کی طرح گلے لگائے گا؟ وہ ہیں خواجہ غریب نواز، وہ ہیں بابا فرید، وہ ہیں غوث پاک، جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہ محض اتہاس نہیں، وہ ہر اس ٹوٹے دل کی کہانی ہے جو روحانی ماں کی گود ڈھونڈ رہا ہے۔ بیٹھیے، رونے دیجیے خود کو، کیونکہ کبھی کبھی روح کو بھی ماں کی طرح کسی صوفی کے سینے سے لگنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ جب سلطنتیں اپنے شان و شوکت میں گم تھیں، دلی کا تخت چمک رہا تھا، سلطان کے احکام ہر طرف چل رہے تھے، لیکن ایک طرف عرب کی زمین سے نکل کر ایک نورانی قافلہ ہند کی سرزمین کی جانب بڑھ رہا تھا، جس کے قدموں کی ہر آہٹ میں کرامات تھیں اور ہر نگاہ میں رحمتوں کی بارش۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ وہ تھے خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا جنم 537 ہجری میں سجستان، ایران کے سنجر شہر میں ہوا۔ والد کا نام حضرت غیاث الدین تھا اور والدہ کا نام بی بی ماہ نور۔ گھر تجارت سے بھرپور تھا، لیکن دل علم اور تصوف کے لیے بے چین۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے اچانک وہ وقت آیا جب آپ کے والد نے انتقال فرما لیا، اور یتیمی کے آنسوؤں میں سے ایک انقلاب جنم لینے والا تھا۔ ایک روز خواجہ صاحب اپنے باغر میں پانی دے رہے تھے، تبھی ایک نورانی بزرگ وہاں پہنچے۔ حضرت ابراہیم کندوجی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے انگور مانگے، خواجہ صاحب نے ادب سے پیش کیے۔ بزرگ نے انہیں چبایا اور پھر وہی انگور خواجہ صاحب کو دیے اور کہا، کھاؤ معین الدین، اب تمہیں وہ ملے گا جو سلطانوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور بس وہی لمحہ تھا جب دل سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی اور روح نے عشق کی طرف پہلا قدم رکھا۔ بغداد، کابل، لاہور، ملتان، ہر شہر میں رکے، لوگوں کو علم، تصوف اور محبت کا پیغام دیا۔ ہر جگہ کراماتیں ہوتیں، کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا، بیمار شفا پا لیتے، جھالموں کے چہرے بدل جاتے، لیکن ایک مقصد تھا، اجمیر پہنچنا، جہاں ایک دن سلطانوں کو بھی سجدے کرنے ہوں گے۔ فقیر کی چوکھٹ پر جیسے ہی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر پہنچے، وہاں کا زمیندار تھا راجہ پرتھوی راج چوہان۔ کافرانہ انداز، طاقت کا غرور، لیکن خواجہ صاحب آئے تھے تلواروں سے نہیں، دعاؤں سے لڑنے، اور ان کی زبان سے نکلے لفظوں نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اجمیر کے ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا، لیکن وہاں صرف ہندو ہی پانی بھر سکتے تھے، مسلمانوں کو منع تھا۔ خواجہ صاحب نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہی تھی۔ انہیں بہت افسوس ہوا۔ آپ وہیں بیٹھے اور رب سے دعا کی، یا اللہ،
अगर ये कुआं बंद है तो आसमान खोल दे, लेकिन इस मां के बच्चे को पानी मिलना चाहिए। और उसी लम्हे आसमान से बारिश शुरू हो गई। लोग दौड़ते आए और बोले, ये आदमी कोई आम नहीं है। जब खबर पहुंची दिल्ली के दरबार में कि अजमेर में एक फकीर आ गया है और उसकी दुआ से लोग बीमार ठीक हो रहे हैं, जालिम सुधर रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, तो सुल्तान घबरा गया। बोला, ये आदमी तख्त के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन एक वजीर बोला, हुजूर, ये तख्त के नहीं, दिलों के बादशाह हैं। अजमेर की उस रात को आज भी लोग रूहानी शब कहते हैं, क्योंकि उस दिन ख्वाजा साहब ने ऐसा वाज किया कि 90,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कई राजपूतों ने ख्वाजा साहब के हाथों में हाथ दे दिया और मोहब्बत की राह पर चल पड़े। जहां बादशाहों की तख्त व ताज थे, वहीं फकीरों की खामोशी भी थी। लेकिन उन खामोशियों में भी एक नाम गूंजता था, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर। बचपन से ही वो दिल का साफ, आंखों का रोशन और रूह का नूर था। उनकी माँ बीबी कुतुबुन्निसा रोज उन्हें एक दाना रोटी देती और कहती, बेटा, इसे नमाज के बाद अल्लाह की राह में रख देना, यही तेरी तालीम की पहली सीढ़ी होगी। एक दिन बाबा फरीद ने माँ से पूछा, अम्मा, क्या अल्लाह मुझे देखता है जब मैं रोज ये रोटी रखता हूं? माँ की आंखें भर आईं। कहा, बेटा, अल्लाह हर उस दिल को देखता है जो सच्चा हो, और तुझे तो वो हर रोज देखता है। वहीं दूसरी तरफ बगदाद की सरजमीन पर एक नाम रोशनी बन चुका था, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें दुनिया गौसे पाक के नाम से जानती है। उनकी रूह से निकला हर लफ्ज दिलों के ताले खोलता। उनके सजदे आसमान तक पहुंचते, और जब वो दुआ करते तो फरिश्ते भी सर झुका लेते। और फिर किस्मत का वो मोड़ आया जब गौसे पाक की रूहानी नजर दिल्ली की तरफ हुई। एक रोज उन्होंने अपने मुरीद से कहा, बगदाद से बहुत दूर एक चिराग रोशन हो रहा है। वो चिराग इस दौर के अंधेरों को मिटाएगा। वो शख्स जो मेरी आंखों से दूर है मगर रूह से बहुत करीब, उसका नाम है फरीद। जब नजर मिलती है मगर आंखों से नहीं, रूह से। बाबा फरीद उस वक्त मलिकपुर में तालीम के लिए गए हुए थे। दुनियावी किताबों से ज्यादा उनका दिल कुरान की तिलावत और तस्बीह की थरथराहट में लगता। वो अक्सर दरिया के किनारे बैठकर अल्लाह का जिक्र करते और रेत पर उंगलियों से हु अल्लाह लिखते रहते। एक रोज जिक्र करते करते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में एक नूरानी शख्स नजर आए, जिनके चेहरे से रोशनी फूट रही थी, जिनके हाथ में तस्बीह थी और जिनकी आंखों में दरिया सा सुकून था। वो शख्स बोले, ए फरीद, तेरी तस्बीह का हर दाना मेरी रूह तक पहुंचता है। तेरा सजदा मेरा सजदा बन चुका है। उठ, वक्त आ गया है, अब तू अकेला नहीं। बाबा फरीद ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? जवाब आया, मैं अब्दुल कादिर हूं, गौसे पाक। और आंख खुल गई। बाबा फरीद के चेहरे पर उस वक्त भी वही नूर था जो ख्वाब में उस बुजुर्ग के चेहरे पर था। उसी शाम बाबा फरीद की मां बीबी कुतुबुन्निसा ने पूछा, बेटा, आज तेरी आंखें कुछ और कह रही हैं। बाबा बोले, अम्मा, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स
ख्वाब में आए और लगे कि वो पूरी जिंदगी का जवाब लेकर आया हो। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो शख्स गौ से पाक हों तो फिर वो ख्वाब नहीं, दावत होती है। और यही दावत थी, एक रूहानी सफर की शुरुआत। जब वक़्त झुकता है वली के सामने और वली झुकता है वली के सामने। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह महीनों का सफर तय करके बगदाद शरीफ पहुंच चुके थे, लेकिन वहां जाना सिर्फ सफर नहीं था, ये था रूह का सफर, जिसका हर कदम तौबा से गुजरता, हर सांस इश्क से हक से भरी होती। शाम ढल रही थी। बगदाद की गलियों में फकीरों की आवाजें गूंज रही थीं, या गौसे आजम दस्तगीर। फरीद रुक जाते हैं, दिल धड़कने लगता है, रूह में वो लम्हा हिलने लगता है जो ख्वाब में देखा था। वो बारगाह में पहुंचते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, कांपते हुए, आंखें बंद। अंदर से एक आवाज आती है, फरीद, तू बाहर क्यों खड़ा है? तू तो पहले से ही मेरे दिल में था। बाबा फरीद की आंखों से अश्क बहते हैं। वो अंदर जाते हैं और एक नूरानी चेहरा, एक सजदा करता हुआ वक्त, एक आगोश खोलकर खड़ा गौ से पाक उन्हें गले लगा लेता है। वो आलिंगन जमीन और आसमान के दरमियान एक वली की दुआ और एक वली की तलब का मिलन था। गौ से पाक ने फरीद के कान में कहा, मैंने तुझे उसी वक़्त जान लिया था जब तू रेत पर हु अल्लाह लिखता था। उस मुलाकात के बाद गौ से पाक ने फरमाया, अब तू लौट जा, लेकिन एक नाम के साथ, फरीदुद्दीन मसूद, जो अल्लाह के फजल और रहमत से फरीद अनमोल बन चुका है। और फरीद का दिल अब रूहानी नसीहतों का मरकज बन गया था। जब बाबा फरीद इस इल्म और नूर को लेकर लौटते हैं और मुलाकात होती है उनके रूहानी वारिस, हजरत सबीर पाक से हर वली को एक वारिस मिलता है, लेकिन कुछ वारिस वजूद से आगे रूह का हिस्सा बन जाते हैं। बाबा फरीद बगदाद शरीफ से वापसी कर चुके थे। सीने में गौ से पाक की दुआ, आंखों में उस नजरे कर्म की चिंगारी और दिल में एक सवाल, अब इस इल्म को किस तक पहुंचाया जाए। वो हांसीपुर की तरफ रुख करते हैं, जहां एक खामोश, तन्हा मगर नूरानी बच्चा जिक्र करता है, सिर्फ एक ही लफ्ज दोहराता है, सब्र सब्र सब्र। ये बच्चा था सबीर अली, जिन्हें हम आज जानते हैं हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह। फरीद उनकी तरफ देखते हैं, एक झलक, और दिल में एक हुक सी उठती है, ए रब, क्या यही है वो जो मेरी रूह का सिलसिला आगे बढ़ाएगा? और दूसरी तरफ सबीर पाक जमीन पर बैठे छोटे से बच्चे जैसे दिखते हैं, मगर आंखों में करबला की तासीर, जिक्र में ऐसा तवज्जो हो जैसे रूह मुहम्मदी का परछाई हो। फरीद उन्हें बुलाते हैं, लेकिन सबीर पाक उठते नहीं, खामोश, मगर नजरों में जवाब। जिसे सब्र आता है वो पहले इम्तिहान को पहचानता है। दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, और फिर एक रात बाबा फरीद उन्हें पास बुलाते हैं। सबीर, तू अब छोटा नहीं रहा, तेरे सीने में अब इल्म का समंदर है। मैं तुझे सौंपता हूं वो अमानत जो मुझे हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी से मिली थी, और उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज से। तू अब वारिस है, वारिस चिश्त, वारिस सब्र और रूहों का इलाज करने वाला एक नायाब खजाना। जिसे सब्र आता है उसे वक़्त का सुल्तान बनना आता है। रात का वक़्त था, सन्नाटा था,
मगर हवाओं में एक अजीब सी सरगोशी थी। हांसीपुर की उस दरगाह के अंदर जहां पहले सिर्फ एक बच्चा बैठा करता था, अब लोग दूर दूर से आने लगे थे। लोग कहते वो सिर्फ देख लें तो दर्द छू मंतर हो जाता है, उनके पास जाएं तो बगैर बोले सब कुछ समझ जाते हैं, उनकी खामोशी में इल्म का समंदर है। ये थे सबीर पाक रहमतुल्लाह अलैह। अब वो एक छोटे बच्चे नहीं थे, अब वो थे तसव्वुफ की उस शम्म का रोशन चिराग जिसे खुद बाबा फरीद ने जलाया था। एक रोज एक फकीर आया, बहुत भूखा था। उसने देखा दरगाह पर कोई लंगर नहीं। हैरान होकर कहने लगा, ये कैसा वली है, यहां तो भूख और तन्हाई है। सबीर पाक मुस्कुराए, आंखें बंद की, हवा में सिर्फ एक जुमला कहा, जिसे खुदा खिलाए उसे लंगर की जरूरत नहीं होती। और अगले ही पल वो फकीर देखता है, उसके सामने हलवा, रोटियां और ठंडा पानी रखा है। कहां से आया, किसने लाया, किसी को नहीं मालूम। लोग दंग। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।